Alright, so in the last lecture we have seen that how to derive the expression of change in entropy in the ideal gas case. But if you notice that the relation is in terms of specific heat of the gas, that is Cv at constant volume. Similarly, if you see the relation for in terms of PV, that there we have the relation in terms of Cp. So now if I want to have the expression in terms of the gamma, that is the adiabatic exponent, right? So how to do this that thing? So we can do in using these two equation. This thing, first one, we know that for ideal gas this thing is valid. This equation is valid, and you also know that Cp by Cv is nothing but gamma. So from here you can replace the value of Cp as gamma times Cv. If you put this value in the first equation, what do you get? You get N times gamma times Cv equal M times Cv equal to Nr. So if you take common NCV and get the value of it, so you can write Cv in terms of gamma in this way. Okay, in this way. Similarly, if I want to have the same expression N times Cp, how you will get it? In this case, replace Cv from this equation. So if I use this equation again, तो यहाँ से Cv क्या आ जाएगा मेरा? Cp by gamma. Okay, now put this 3 in 1, तो क्या आएगा? NCp minus N times Cp by gamma equals Nr. Take NCp common. What do you get? 1 upon 1 minus gamma equal to Nr. And if you take LCM and bring it to the right hand side, it is nothing but Nr times gamma upon gamma minus 1, right? So in this way you can replace the value of NCp. Wherever you have NCp, you can replace this value. Fine, just remember these two. I mean it's your wish, either remember it or derive it on the spot. These two things, if you remember and you replace these two things in the expression, then you can get the result. Suppose if I do it for the first case, okay, if I do it for the first case here, since I have here NCV, so I can replace NCV by this expression, that is Nr by gamma minus 1, Nr by gamma minus 1, then log Tf by Ti plus Nr log Vf by Vi. Since Nr is common, right? Nr is common, you can take Nr outside, and the rest thing is as it is. Okay, like this. And if you use the property of logarithmic function, that is ln x power n is nothing but n times ln x, right? So this multiplicative constant factor you can bring to the exponent of the argument of log. So the argument of log is here Tf by Ti, so you can write it in this way also. है ना? Am I doing it correct? Yeah. So the next term is as it is. You don't have to worry about the next term. है ना? ये property हमने use कर रखी है. This thing is going to the
exponent of the argument. Now you just use the another property of logarithmic, that is log of a plus log of b is nothing but multiplication of the arguments. Then you will get nothing but argument are multiplied. The first argument is this and second argument is this. You just have to multiply these two argument and that is the final argument of log, single log. So the difference comes in two fold. दो तरीके से डिफरेंस आता है डेल्टा एस निकालने में. पहला डिफरेंस ये है कि वो कांस्टेंट हीट कैपेसिटी के बजाय गैमा के टर्म्स में हमारा रिजल्ट आता है. एंड सेकेंड डिफरेंस इज दैट वी आर हैविंग ओनली वन फंक्शन, I mean single term in the formula, right? We don't have to sum two logarithmic function. पहले log दो फंक्शन थे logarithmic के, right? यहाँ से अगर तुम देखोगे तो logarithmic के दो फंक्शन थे, but now it is in the simplified form. This is better to have as the final answer. I hope this thing is clear. So similarly you can find the same answer, same simplified form for the other cases also. I hope you can get this thing by yourself using these two formulas, but I can write the final answer to maths ताकि you can match कि भाई मेरा आंसर जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो सही है या गलत है करके. ओके, सो लेट मी गिव यू द फाइनल आंसर फॉर दैट केस. जब तुम्हारा P और V के टर्म्स में जब तुम निकालोगे तो वो ऐसा आना चाहिए एन आर logarithmic of these two arguments, t final by t initial power gamma over gamma minus 1 and p initial by p final, like this. And the next one, that is in terms of p and t, v final, t final, p initial, t initial. इस केस में भी तुम्हारा जो आंसर आएगा वो दिस इज एन आर टाइम्स लॉगरिथमिक से पहले यहाँ पर तुम्हारा ओके ये उल्टा हो गया ना, ये ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे आना चाहिए था. Sorry for that. बट इसके लिए जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ऐसा देखना चाहिए, लॉगरिथमिक ऑफ p final by p initial times v final by v initial power gamma. I hope this thing you can get by yourself ताकि you can have practice of the calculation, है ना. एग्जाम में भी हेल्प होगी अगर तुम खुद से एक आधी कैलकुलेशन करोगे और मैच करोगे रिजल्ट्स को. So it will help you in your exam also. So this was the last thing I was I just missed out this thing in the last case, but I have covered it in this first portion of this video. But fine, now we will go for the numericals. Now if you come to the numericals, तो न्यूमेरिकल में जहाँ तक थर्मोडायनेमिक एग्जांपल्स की बात आती है तो मैक्सिमम केस में हमारा सिस्टम वाटर रहता है, और जो उसके थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होता है, लिक्विड से गैस बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है, यानी आइस बन जाती है जब. तो जो कांस्टेंट यूज होते हैं स्पेशली स्पेसिफिक हीट्स हो गए, लेटेंट हीट्स हो गए, तो वो उनकी वैल्यूज पता होना ज़रूरी है. एक्सपेक्ट कि ये एग्ज़ाम में देंगे, बट स्टिल इन वर्स्ट केस अगर वो देना भूल गया एग्जामिनर, then you need to have these things in your tips. Okay,
फिंगर टिप्स। तो पहला कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि अगर वाटर ही है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 कैलोरी per gram per Kelvin. Remember, I am writing all these things in calorie. You can also convert calorie into joule using the formula of 1 calorie equal to 4.2 joule, right? 20. You can use this also, 1 calorie equal to 4.2 joule. एंड सबसे बड़ा ट्रैप जो होता है वो यूनिट्स का होता है। मैंने यहाँ पर यूनिट्स क्या लिख रखी है, बहुत ध्यान से देखना। कैलोरी पर है, हीट की यूनिट कैलोरी है, मास की यूनिट ग्राम है, और टेम्परेचर की यूनिट तो हमेशा केल्विन रहती है। बट तुम्हें ध्यान देना है कि यूनिट मास की क्या है और इसकी क्या है, हीट की क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मास ग्राम में दे रखा है तो ये यूज़ करो, अगर किलोग्राम में दे रखा है तो यू नीड टू यूज़ द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर या तो ऐसा करो कि इनको ऐसे ही याद करो, और हमेशा ध्यान रखना कि हमें मास ग्राम में यूज़ करना है। तो क्वेश्चन में अगर किलोग्राम दे रखा है तो जस्ट कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। तो यूनिट्स आर द फर्स्ट ट्रैप। यूनिट्स अगर पता नहीं है, इन कांस्टेंट की वैल्यू प्लस यूनिट के साथ याद रखना, अदरवाइज यू विल फॉल, डेफिनेटली फॉल इनटू द ट्रैप। ओके, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है, यानी कि आइस को आइस का टेम्परेचर घटाने में और बढ़ाने में पर यूनिट ग्राम कितना हमें हीट देना पड़ेगा, वो होता है तुम्हारा आइस का 0.50 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। एंड स्टीम का भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है, बट टू बी प्रिसाइज ये 0.48 होता है। बट मैक्सिमम केस में लोग इसको 0.50 लिख देते हैं, बट उतना फ़र्क आंसर में आएगा नहीं। ये तो स्पेसिफिक हीट्स होगी। नाउ कम टू द लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट भी दो तरीके की होती है। आई हैव ऑलरेडी mentioned these things before also. Latent heat of vaporization, मतलब इसको ऐसे याद रखना, जब वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम, इसकी वैल्यू जो थी वो थी आपकी 540 कैलोरी पर ग्राम। यूनिट्स ध्यान रखना, यहाँ पर यूनिट्स और इसकी यूनिट्स में डिफरेंस है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जब आपका आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। ऐसे याद रखना इनको। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर ये चीज़ तुम्हें पता है विथ यूनिट्स, देन यू कैन डू द प्रॉब्लम्स इन वेरी कंफर्टेबल मैनर, तब दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम, द क्वेश्चंस विथ दीज यूनिट्स इन योर हेड। ओके, मैं इनको ऊपर कॉपी कर लेता हूँ, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन इट समवेयर। सो द पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना एंट्रोपी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैक्सिमम केसेस में दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं। पहला, हमारे पास सिस्टम जो होगा उसमें एक ही कंपोनेंट होगा, एक ही उसमें एलिमेंट होगा, एक ही आइटम होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक ही आइटम है। आइटम क्या है? 10 ग्राम ऑफ आइस। 10 ग्राम ऑफ आइस है और इसी में ही सारा कुछ क्वेश्चन इसी पर ही सेंटर्ड है, इसी पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं जहाँ पर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनको मिक्स किया जाता है, उसके बाद एंट्रोपी पूछी जाती है। अक्सर दो चीज़ों को ही मिक्स किया जाता है, मल्टीपल नहीं, दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है। अगर मल्टीपल को करेंगे तो क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो ध्यान रखना,
दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बनती हैं मैक्सिमम केसेस में, जहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी पूछते हैं। दूसरा पार्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लाते हैं, उनकी मिक्सिंग करते हैं, देन दे आस्क फॉर द एंट्रोपी चेंज। ऑफकोर्स पहला वाला केस ईजी है क्योंकि वहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको हमें टैकल करना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव 10 ग्राम ऑफ आइस, ठीक, and we need to we have to convert it into the steam, right? Steam, 10 ग्राम ऑफ स्टीम, और ये था हमारा आइस। तो और हमें निकालनी है चेंज इन एंट्रोपी। सो सिंपली वी नो दैट चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट dq/t, okay, but you know that how to calculate dq, I mean change in heat कैसे निकालते हैं हम, हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट एक्सपेल्ड या फिर कितना उसने हीट रिजेक्ट किया है, उसको निकालने के हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं। जब फेज ट्रांजिशन नहीं होता है तो देन वी यूज़ डी क्यू इक्वल टू एम सी डी टी, राइट, और जब फेज ट्रांसफॉर्म होता है तो वी यूज़ डी क्यू इक्वल टू एम एल, राइट, ये यूज़ करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उस केस में थोड़ा तुम्हें अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में डी क्यू के दो फॉर्मूले बनते हैं। तो यू नीड टू डिवाइड दिस इंटीग्रल इन द मल्टीपल पार्ट इन सच केसेस वेयर द फेज इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, फाइन। तो यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्म कितनी दफ़ा फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो यू जस्ट डिवाइड दिस प्रोसेस इन मल्टीपल सब प्रोसेसेस। तो पहला, जब ये 10 ग्राम आइस थी और इसका टेम्परेचर -20 डिग्री है, तो पहले ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा 0 डिग्री वाला आइस बनेगा, ध्यान रखना। अभी भी आइस ही है बट टेम्परेचर 0 डिग्री बन गया है। नाउ अब ये जो तुम्हारा बनेगा, ये बनेगा 0 डिग्री का वाटर, ठीक है। दिस इज़ द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन है तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा इसको स्पेशल बनाने के लिए टी लिख रहा हूँ। फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो TR लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस में अब जब ये वाटर बनेगा तो कुछ टाइम के लिए वाटर रहेगा। कब तक ये वाटर बना रहेगा, जब तक तुम्हारा टेम्परेचर तुम्हारा मतलब सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री ही तक पहुंच जाए। तो जब टेम्परेचर तुम्हारा 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो ये 100 डिग्री वाला वाटर बनेगा। उसके बाद ये 100 डिग्री का स्टीम बनेगा। यहाँ पर तुम्हारा फेज ट्रांजिशन होगा तो मैं अगेन यहाँ पर TR लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 100 डिग्री 10 ग्राम का स्टीम बन गया आपका, ठीक है। नाउ लेकिन हमें पहुंचाना कहाँ तक है, हमें इसको पहुंचाना है 120 डिग्री के स्टीम तक। लेकिन अभी ये कहाँ तक ही है, यहाँ ये अभी ये 100 का स्टीम बना है। तो लास्ट जो आपका बचा प्रोसेस दैट इज़ नथिंग बट 120 डिग्री का स्टीम, ठीक है। तो इफ़ यू सी फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो यू नीड टू डिवाइड इंटीग्रल अकॉर्डिंगली। तो डेल्टा S इज नथिंग बट dq/t, ठीक है। पहले केस में इसको मैं 1 लिख देता हूँ पहला इसके लिए, ठीक, प्लस dq/t for second process that is transition, right। तो मैं पहले ही इनको गिन लेता हूँ कि कितने तरीके हैं, कितने स्टेप्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो वी नीड टू डिवाइड इंटीग्रल इनटू 5 पार्ट्स। ये पहला ट्रिक हो गया, 3, 4। और हमें डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है, टेल मी। बिकॉज हर एक प्रोसेस में
dq is different, t is different, that's why. पहला प्रोसेस, जब आइस आइस ही है, देर इज नो फेज ट्रांजिशन, राइट, आइस इज स्टिल आइस बट टेम्परेचर इज गेटिंग चेंज, सो यू नीड टू यूज विच फार्मूला, एम सी डी टी, डी क्यू इज नथिंग बट एम सी डी टी बाई टी, है ना, क्योंकि नो फेज ट्रांजिशन. नाउ इन सेकेंड केस, ice is getting converted into water, so there is phase transition, so you need to use only the formula of m into l. dq के जगह पे हम लिखेंगे m into l और t एज इट इज आ जाएगा. और यहाँ पर ध्यान रखना l यहाँ पर कौन सा आएगा, दो l थे हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो मैं यहाँ पर f लिख देता हूँ सो दैट वी कैन रिमेंबर इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन. थर्ड स्टेप, sorry, water is still water but temperature is changing, so you need to use mc dt by t. तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पर भी हमने सेम ये दो फॉर्मूले सेम दिख रहे हैं, बट पता होना चाहिए कि तुम्हें माइंड में कि ये और ये डिफरेंट है, क्योंकि सी की वैल्यू डिफरेंट है. तो इसको मैं सपोज कर ले सी, इसके सुपर स्क्रिप्ट में सी डब्ल्यू लिख देता हूँ, तो ताकि हमें आगे याद रहे. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, वाटर टू स्टीम. अगेन देयर इज फेज ट्रांजिशन, सो दिस इज एम एल बाई टी, बट एल इज फॉर नाउ वेपराइजेशन, सो आई एम राइटिंग इन द सबस्क्रिप्ट एज स्मॉल v. एंड द लास्ट प्रोसेस इज दैट देयर इज नो फेज ट्रांजिशन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एम सी डी टी बाई टी, एंड यहाँ पर सी के ऊपर मैं एस लिख दे रहा हूँ, दैट इज फॉर स्टीम, है ना. तो ये हमें 5 इंटीग्रेशन करने हैं और सिंपल इंटीग्रेशन से. तो पहला वाला जो टेम्परेचर, क्योंकि m इज़ कांस्टेंट, c इज़ कांस्टेंट, सो डी टी बाई टी, बट टेम्परेचर की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, -20 से 0 तक होगी ना लिमिट, करेक्ट. नो, ऑलवेज पुट टेम्परेचर इन केल्विन, सो इनिशियल टेम्परेचर इज -20 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन हो जाएगा, 253 केल्विन, और 0 डिग्री का मतलब हुआ 273 केल्विन. ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, दिस वन, बिकॉज फेज ट्रांजिशन इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट. ठीक है, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर की वैल्यू तुम सीधे लिख सकते हो, कितना है टेम्परेचर यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 लिखो, और ये तो इन्फाइनाइट हो गया फिर ना, मज़ा आ गया तब. तो 0 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमें टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है. थर्ड पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो यानी कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 273 से 373 हो जाएगा. अगेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, दिस इज ट्रांजिशन प्रोसेस, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू, 373, राइट, 100 डिग्री का मतलब 373. लास्ट इंटीग्रेशन, लास्ट पार्ट क्या होगा, 100 से 120, यानी कि 273 से 293. ओके, फाइन. सो पहले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एम सी लॉग 273 अपॉन 253, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी. दूसरा तो इंटीग्रेशन है नहीं, तो एल एफ बाई 273 प्लस एम सी डब्ल्यू लॉग 373 बाई 273 प्लस एम एल वी बाई 373 प्लस एम सी एस लॉग 293 बाई 273. ओके, फाइन. हमें m की वैल्यू 20 ग्राम दे रखी है, c की वैल्यू हमें पता है 20 इंटू 1. ध्यान रखना मैं सब वैल्यू c की कैलोरी में लिख रहा हूँ, और क्योंकि ये देखो मास हमें ग्राम में दे रखा है, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत है नहीं मास का. तो c की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये किसके लिए था, आइस के लिए था ना, तो आइस के लिए 1 है क्या इसकी वैल्यू, नहीं, इसके लिए क्या है वैल्यू आइस के लिए, 0.48 ना 0.50, सॉरी. सो यू नीड टू यूज़ द वैल्यू अकॉर्डिंगली, 0.50, और ये लॉग तो एज इट इज आ जाएगा. फाइन. और इफ़ यू सी m इज़ कॉमन इन ऑल, सो यू कैन टेक m
as common factor outside like this, plus LF latent heat of fusion कितनी है, latent heat of fusion कितनी है 80/273, क्योंकि M कॉमन आउट हो गया। और नाउ C ऑफ वाटर कितना है 1, और log तो एज इट इज आ जाएगा 373/273, प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है 540/373, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितनी है 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और लॉग एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड question that can be ever asked in terms of when the single object is getting converted into the next state, next phase transition का सबसे complicated question यही हो सकता है। तो this is the final answer, okay, and because now you can put all these value in the calculator and you can get the answer. I mean you want me do it? करें क्या इसको, देखने कितना आता है। बट टाइम लग जाएगा यार इसको गुणा करने में, भाग करने में। ओके, ln273/253 into 0.50 plus 80/273 plus ln 373/273 plus 540 by 373 है ना, प्लस 0.48 टाइम्स ln 293/273 ये आया, and finally we have to multiply by 20 outside, so it is coming out to be 42.4969 delta S is nothing but this thing, calorie per Kelvin. So this is my answer. Maybe there is some mistake, you can also verify, but idea should be clear कि कैसे हम निकाल रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला ये है, और ये दो चीज़ें हमने यूज़ करी। फेज ट्रांजिशन होगा तो ये डी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, जस्ट टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। So this is our first numerical question. Next question, if you see now we have two system. First system is that 10 gram of water at 60 degree temperature, and second is the 30 gram of water at 20 degree of Celsius, and these two systems are getting mixed हो रही सिस्टम। अब पूछा गया है कि मिक्स करने के बाद एंट्रोपी जो फाइनल सिस्टम बनेगा, इन दोनों को ऐड करके जो फाइनल सिस्टम बनेगा उसका एंट्रोपी क्या होगा, चेंज होगा बढ़ेगा, मतलब सॉरी दिस इज़ नॉट गुड वे टू आंसर टू डिस्क्राइब द क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इसका एंट्रोपी प्लस इसका एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो चेंज पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट। सो उसके लिए सबसे पहले हमें सिंपली स्टार्ट करना पड़ेगा डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी से, ओके। डी क्यू का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, राइट, एम सी डी टी, ओके। और एम सी डी टी अगर हम लगा लें, एम सी डी टी बाई टी अगर हम लगा लें, तो वी नीड लिमिट, राइट।
इनिशियल टेम्परेचर तो हमें पता है, इसका इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है, इसका इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है, बट फाइनल टेम्परेचर वी डोंट नो। अगर ऊपर के क्वेश्चन देखोगे, यू नो कि टेम्परेचर इनिशियली क्या है, फाइनली क्या है, इनिशियली क्या है, फाइनली क्या है। तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए वी विल यूज अ मेथड, दैट मेथड इज यूज्ड इन वेरी मच प्लेसेस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये जो पहला, इसको मैं सिस्टम ए बोल देता हूँ, इसको सिस्टम बी बोल देता हूँ। तो एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बी, दोनों को हमें निकालना है, बट दोनों की हमें लोअर लिमिट पता है। लोअर लिमिट पता है, पहले की लोअर लिमिट क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस है ना। 60 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया ये, 333 यही हुआ शायद। और उसी तरीके से सिस्टम बी का लोअर लिमिट 293 हो जाएगा, राइट, फाइन। तो ये तो ठीक है, बट हाउ टू कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ हीट, है ना। क्योंकि अगर ये देखोगे तो इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है, जब हम मिक्स करेंगे तो हीट विल रिलीज फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी। मिक्स करो या फिर दोनों को कॉन्टैक्ट में लाओ, तो वो अलग तरीका है कि कैसे हम चीज़ों को चीज़ें मतलब दोनों सिस्टम को हम मिक्स करना चाह रहे हैं या फिर दोनों सिस्टम को इंटरेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट कन्वर्ट होगी, राइट, हीट फ्लो करेगी, सॉरी। तो सिंपली हम लिखेंगे हीट रिलीज्ड बाय ए, ठीक है। कितना हीट रिलीज करेगा, दैट इज सिंपली मास ऑफ ए, लेट्स कॉल इट डेल्टा क्यू रिलीज्ड, आर, मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, ठीक है। तो मास इसका 10 था, क्योंकि वाटर है तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ 1 डेल्टा टी ए। अगर ये हीट रिलीज़ कर रहा है तो हमें हाइयर माइनस लोअर टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, राइट। रिलीज तभी होगी जब हाइयर से लोअर जाती है। तो इनिशियल टेम्परेचर इसका 60 था और लोअर टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर जब हमें जो पता करना है वो टी है, राइट। फाइनली सब दोनों का, इसका भी टेम्परेचर टी हो रहा है, हमें नहीं पता कितना है, दैट इज़ वी वांट टू फाइंड इट आउट, एंड ये इसका टेम्परेचर भी फाइनली टी है। तो ऑफकोर्स ये इतना हो जाएगा। नाउ यू मस्ट आस्क वन क्वेश्चन कि यार यहाँ पर हमने टेम्परेचर को सेल्सियस में क्यों ले लिया, क्योंकि हम डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, और डिफरेंस सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो, बोथ गिव्स द सेम रिजल्ट। वी हैव डिस्कस दिस थिंग बिफोर ऑल्सो। सो डेल्टा क्यू आर ये आ गया। अब हीट एब्जॉर्ब्ड कितना आएगा बाई बी, जितना अगर तुम फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या आएगा, मास ऑफ बी, सी ऑफ बी एंड डेल्टा टी ऑफ बी। तो मास ऑफ बी इज नथिंग बट 30, और क्योंकि ये भी वाटर ही है तो सी बी इज ऑल्सो 1। डेल्टा टी भी कैसे लिखें, ये तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार इसको मैं इस फाइनल माइनस इनिशियल लिखूँ, इनिशियल माइनस फाइनल लिखूँ। ऐसे लिखो कि ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी वो पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अब ये डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा, जब अब जो नेगेटिव के लेफ्ट में होगा वो बड़ा हो और जो राइट में होगा वो छोटा हो, राइट, ऐसे। क्योंकि देखो ना, इसका टेम्परेचर घटेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा मिक्सिंग करने में, राइट। जब हीट इसको मिलेगी तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, तो इसका फाइनल टेम्परेचर बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने फाइनल टेम्परेचर को पहले लिखा हुआ है। लेकिन इसका फाइनल टेम्परेचर छोटा होगा क्योंकि इससे हीट निकल रही है, तो इसलिए मैंने इसको पीछे लिखा हुआ है। तो सो दैट दिस थिंग बिकम पॉजिटिव, उस तरीके से हमें इसको लिखना है, डेल्टा टी को, कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हमने बोला कि हीट रिलीज्ड हैज़ टू बी equal to heat absorbed. So if you equate these two, if you put the value of these two equations, these two terms, so 10 into 1 is simply 10, sorry,
So this is nothing but 10 times 60 minus t is equal to 30 times t minus 20. So it will become 600 minus 10t equal to 30t minus 600, right? So from here what do you get? 20t equals 1200. So sorry, 40t equal to 1200. So it is nothing but 30 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस. ध्यान रखना यहाँ पर अगर तुमने सेल्सियस यूज़ किया है तो ऑफकोर्स आंसर भी सेल्सियस में आएगा, इसको केल्विन मत कर देना. तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों के साथ. तो ये मत बोलना कि यार फाइनली मैंने इतना निकाला बट आंसर तो गलत आ गया, मास्टर ने मार्क्स डिडक्ट कर लिया, वट एवर. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक एक स्टेप फूक कर तुम्हें लेना पड़ेगा, then only you can get the final answer. So correct answer. So अगर T 30 डिग्री सेल्सियस निकला हमारा फाइनल टेम्परेचर, तो 30 का मतलब कितना हो गया ये 303 केल्विन. तो हमें अब अपर लिमिट भी मिल गई. ओके, दोनों के लिए अपर लिमिट मिल गई. तो नाउ इफ़ यू डू दिस कैलकुलेशन, सो डेल्टा एस ए कितना आ जाएगा? मास कितना था 10, सी कितना है 1, और ये कितना आ जाएगा लॉग 330/333. एंड इफ यू पुट इन द कैलकुलेटर यू कैन सी दैट माइनस 0.944 कैलोरी पर केल्विन. एंड सिमिलरली डेल्टा एस बी कितना था हमारा? मास इसका 30 इंटू 1 इंटू लॉग 303/293, and this will come out as 0.063 कैलोरी पर केल्विन. ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो, दैट इज़ व्हाट द टोटल एंट्रोपी, चेंज इन टोटल एंट्रोपी है एक सिस्टम की. तो यू कैन सी कि इट विल कम एज 0.6063 कैलोरी पर केल्विन. तो ये हमारा आंसर आ गया. आंसर तो आ गया, बट आई वांट टू पुट सम एम्फसिस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि अगर तुम देखो सिस्टम ए जो है उसकी एंट्रोपी नेगेटिव आ रखी है, तो ये ऐसे नेगेटिव नहीं आ गई, इसके पीछे लॉजिक है. जब सिस्टम कोई भी सिस्टम हीट रिलीज़ करेगा तो उसकी एंट्रोपी नेगेटिव आएगी. क्यों? क्योंकि हमारा कन्वेंशन रहा है कि जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा क्यू इज़ नेगेटिव. तो अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा तो उसको टेम्परेचर के साथ डिवाइड करने के बाद तो वो नेगेटिव ही आना है ना, क्योंकि टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में हमेशा पॉजिटिव रहता है. और सिमिलरली बी का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आया है क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब कर रखी है, और हमें पता है कि हमारा कन्वेंशन में हीट एब्जॉर्ब हमेशा पॉजिटिव रहता है. तो ये चीज़ें तुम क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार मेरा आंसर एटलीस्ट साइन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आया, सही आया नहीं आया करके. सो हीट एब्जॉर्ब जब होगी तब एंट्रोपी इंक्रीज होगी. अगर इसको तुम एस टी डायग्राम में देखोगे, अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब करी हुई है. और अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, नीचे को आ रहा है ग्राफ, तो हीट रिलीज करिए. ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो और टोटल एंट्रोपी यहाँ पर पॉजिटिव आ रखी है क्योंकि ये दोनों मिक्सिंग एक क्लोज्ड कंटेनर में हुई है, मतलब आइसोलेटेड कंटेनर में हुई है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है. अदरवाइज ये अगर ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हालांकि लिखा नहीं है, बट ये पूरा का पूरा प्रोसेस आइसोलेटेड कंटेनर में हुआ है, यानी कि डेल्टा क्यू सराउंडिंग के साथ 0 है. तो इसीलिए ये जो पूरी एंट्रोपी का सम आया हुआ है ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का है, क्योंकि सराउंडिंग का यहाँ पर कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 हो गया है. तो और हमने देखा था कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, तो यानी कि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी. तो आंसर भी पॉजिटिव आया देखो यहाँ पर. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल
कि भाई जो हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में वो एक्चुअल नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी मैच कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसे हवा हवाई नहीं खेलना है गेम, समझ में आना चाहिए बातें। यू नीड टू फील द सब्जेक्ट, ओके। एक और सब क्वेश्चन है, द कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टिन। ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक से हटके क्वेश्चन आ गया है, बट स्टिल यू कैन स्टिल आई मीन डू दिस क्वेश्चन। कि जो टिन है सॉलिड है वहाँ पर, टिन अभी सॉलिड टिन की अगर हम बात करें, जो 1 ग्राम उसका अमाउंट है, और उसको मेल्ट करने के बाद यहाँ पर मेल्ट हो गया है, इसका टेम्परेचर 272 डिग्रीज हो गया, राइट। तो सिंपली यू नीड टू सी कि इसमें भी फेज ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। कैसे देखोगे इसको तुम? सो तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन द 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टिन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रेज्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ 272। ओके, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, तो ऑफकोर्स ये 272 में मेल्ट हो जाएगा, सॉरी 232, आई एम रियली सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। सो 232 पर ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मेल्ट होने के बाद ये इसको टेम्परेचर 272 तक बढ़ाया गया है। तो असली पिक्चर क्या है? कैन यू गेस? प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गेस। असली पिक्चर ये है, पहले ये सॉलिड था, 232 वाला सॉलिड था, फिर ये 232 वाला लिक्विड बना, अगेन ये जो लिक्विड है वो लिक्विड कन्वर्ट किया गया है कहाँ तक? नहीं, लिक्विड का टेम्परेचर रेज किया गया है, कन्वर्ट नहीं, रेज किया गया 272 तक। तो ट्रांजिशन यहाँ पर एक ही बार हुआ है, ये वाला, ओके। सो नाउ डेल्टा एस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो डेल्टा S1 इज़ नथिंग बट मास टाइम्स L, दैट इज डेल्टा Q हो जाएगा, और टेम्परेचर T हो जाएगा। तो एटॉमिक वेट जो होता है वो मास ऑफ 1 ग्राम, आई मीन ओके, बेटर टू राइट केमिस्ट्री वाला चैप्टर यहाँ पर थोड़ा काम आएगा। तो एटॉमिक वेट हमें गिवन है, गिवन दैट एटॉमिक वेट इज ऊपर दिया हुआ है ना, एटॉमिक वेट ऑफ टिन इज 118। तो इसका मतलब होता है कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 118 ग्राम, ठीक है। तो मास हमें 118 मिल गया। थोड़ा सा केमिस्ट्री का है यहाँ पर रोल, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये थोड़ा मैंने गलत लिख रखा है। ये 1 ग्राम ऑफ सॉलिड नहीं है, ये 1 ग्राम ऑफ एटम है। 1 ग्राम ऑफ एटम का मतलब 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। तो ये हमारा मास आ गया क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है एक्सप्रेशन, बट सिंपल है। सो डेल्टा S1 इज़ नथिंग बट 118 मास आ गया। एल इज़ नथिंग बट 14 कैलोरी पर ग्राम, दोनों ग्राम में है तो यू डोंट नीड टू डू एनी कन्वर्जन। एंड टेम्परेचर कितना है, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है? 232 डिग्री सेल्सियस, बट हमें कैल्विन में लिखना पड़ेगा। तो कैल्विन में कितना आ जाएगा? 232 प्लस 273 is nothing but 505, so it will become 505. Now if you multiply and do this calculation, okay, let's do it in later part. डेल्टा S2 कितना आएगा? MC dt by T, integrating from initial to final temperature. Initial temperature 232, final temperature 272. If you convert it into Kelvin, so it will become 505 to 545, ठीक है। तो अगेन मास इज 118
Now specific heat, C, what is C? Please see, what is C? 0.064, and this is log 545 upon 505. So of course delta S total कितना आ जाएगा, delta S1 plus delta S2. If you do this calculation, I have already done, so you can also do 3.85 calorie per Kelvin. Okay, so this is again the next problem, and remember this is also problem where single system is given, मिक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा इजी हो गया. बस हमेशा ध्यान रखना कि यार मिक्सिंग हो रही हो तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, और अगर सिंगल तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है उस केस में ये देखना होता है कि फेस ट्रांजिशन तो नहीं हो रहा है कहीं पे. फेस ट्रांजिशन होगा तो वो थोड़ा सा तुम्हें वहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ा, मतलब मल्टीपल टाइप पार्ट में एंट्रोपी निकालनी पड़ सकती है इंडिविजुअल पार्ट के लिए. ठीक है, ओके. सो ये भी, दिस इज़ योर होमवर्क. प्लीज़ कॉमेंट द आंसर इन द चैट बॉक्स. कॉमेंट आंसर इन चैट बॉक्स. हिंट ये है कि ये ऑफकोर्स यहाँ पर दो सिस्टम मिक्स किए जा रहे हैं, और एक आइस है और एक वाटर है. सो पहले तुम्हें दोनों सिस्टम को मिक्स करने के बाद जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा वो यहाँ पर निकालना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. अगर तुम इसको निकाल दोगे तो इट मीन्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट with some other problem also. Finally एक क्वेश्चन कार्नो साइकिल पे कराता हूँ, सो दैट कार्नो साइकिल भी थोड़ा इजी हो जाए. क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल ABCDA as shown in diagram. Let me make the diagram. ठीक है, TS डायग्राम बनाना है. और ये जो डायग्राम है ना, सॉरी ये कानो इंजन नहीं है, मैंने कानो बोल दिया बट कानो इंजन नहीं है ये एक ऐसा इंजन है जिसका साइकिल कुछ ऐसा है, सर्कुलर. ठीक है, और थोड़ा सा मैं जितने भी वैल्यूज दे रखी हैं उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. So this is your T1, this is your T2, and this is your S1, this is your S2, and ये यहाँ पर मार्किंग कर रखी ABCD. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, द एरो इज दिस वे, क्लॉकवाइज. ऑफकोर्स क्लॉकवाइज होना पड़ेगा क्योंकि ये इंजन है, राइट. और एक और चीज़ ये रखी है कि AC इक्वल टू BD, ये जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर है. ठीक है, गिवन. तो इस क्वेश्चन को कराने का मकसद यही है कि किसी भी डायग्राम का एरिया कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम. तो सबसे पहली बात ये है कि एंट्रोपी इन एफिशिएंसी ईटा इज नथिंग बट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, सॉरी वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट. जो 1 माइनस T2 बाई T1 है, जो 1 माइनस T फाइनल बाई T कोल्ड बाई T
टी कोल्ड बाई टी हॉट है, वो भी तो इसी से निकल के आया था ना, तो वर्क डन बाई हीट एब्जॉर्ब से निकल के आया था। तो अगर तुम देखो, हमने बताया था कि तुम्हें भाई हीट एब्जॉर्ब सॉरी, जो टी एस डायग्राम का एरिया होता है वो क्या बताता है हमें। टी एस डायग्राम हमारा ये है ना, सर्कल, तो इसका जो सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या देगा हमें, वर्क डन देगा, ध्यान रखना, आउटपुट वर्क, आउटपुट ऑफ वर्क देगा। ये हमने पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बता रखा था। तो ऑफकोर्स जो वर्क है वो तो हम सीधे एरिया से निकाल सकते हैं। वर्क इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का नाम क्या है, ABCDA, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई तो पाई होगा, लेकिन रेडियस क्या है तुम्हारी, रेडियस है तुम्हारी BD या फिर AC बोल लो उसको, BD/2। BD तो आपका डायमीटर है, लेकिन उसका हाफ ही हो जाएगा, BD/2 होल स्क्वायर बाई 2, मानी BD/2 होल स्क्वायर। तो BD को कैसे निकालोगे, BD इज़ नथिंग बट इफ़ यू सी दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, तो यानी कि ये इतना बड़ा T1 होगा और यहाँ तक T2 होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस T1 माइनस T2 तुम्हारा BD हो जाएगा बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा वर्क डन निकल गया, तो एरिया से हमने वर्क डन निकाल दिया। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एलिगेंट पार्ट ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स कम्स दैट कि हीट एब्जॉर्ब कैसे निकाला, क्योंकि क्यू क्या होता है, क्यू हमारा होता है हीट एब्जॉर्ब। ध्यान रखना, जो एंट्रोपी का फॉर्मूला जो होता है ना, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले भी बता रखा था। ये जो क्यू होता है, क्यू एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी मैंने बताया था कि जब जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तब तब एंट्रोपी बढ़ती है। तो अगर और हमें जो साइकिल दे रखा है वो दे रखा है ABCDA, इसका मतलब साइकिल A से स्टार्ट हो रहा है और A ही पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है तो देखो कहाँ तक इस पूरे प्रोसेस में कहाँ तक एंट्रोपी बढ़ रही है। देखना, एंट्रोपी एक्स एक्सिस में है, तो अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई यहाँ तक पहुँच गया, तो क्या एंट्रोपी बढ़ी, हाँ बढ़ी। देखो यहाँ तक था और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बढ़ रही है, यस बढ़ रही है, यस। यहाँ पर B तक बढ़ी, यस, क्योंकि S2 से सपोज कर लो ये S3 है, तो आगे बढ़ रहा है ना, एक्स एक्सिस यहाँ को है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। देखो कहाँ तक बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। एरो को मत देखो, एरो को देखो तो लग रहा है कि नीचे को जा रहा है, नीचे को, और हमारा परसेप्शन होता है कि कोई चीज़ जब नीचे को जाती है तो घटती है। नो, हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस को देखना है। क्या A से B तक जाने में एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है सर। B से C जाने में एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है सर। तो इसका मतलब A से लेके C तक एंट्रोपी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। नाउ अगर तुम C से D तक जाओ, क्या एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा, नो, ये तो घट गया, एक्स कोऑर्डिनेट घट गया। इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है। और एंट्रोपी कब घटती है, जब हीट रिलीज होती है। लेकिन हमें किस चीज़ से यहाँ पर तादाद में है, सॉरी बहुत ज़्यादा हिंदी होगी, हमें किस चीज़ से यहाँ पर हमें किस चीज़ की यहाँ पर परवाह है कि कब कब एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि कब कब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। तो A से लेके C तक हीट एब्जॉर्ब हो रही है, A से लेके C तक हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और TDS क्या होता था हमारा, DQ। और जो ये इसका मतलब इसके अंडर जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया होगा पूरा, दिस इज कॉल्ड हीट एब्जॉर्ब्ड। ध्यान रखना, TDS का जब हम पूरे सर्कल में साइक्लिक प्रोसेस में जब हम एरिया निकालते हैं तब वो वर्क डन देता है। लेकिन अगर प्रोसेस साइक्लिक नहीं है तो उस केस में TDS हमें हीट एब्जॉर्ब देता है। तो यानी कि हीट एब्जॉर्ब यहाँ पर कितने मतलब एब्जॉर्ब भी हो सकता है और नॉन वो सिंपली हीट रिलीज भी हो सकता है। बट TDS का ध्यान देना, अगर ये जब फुल सर्कुलर इंटीग्रेशन होता है तो ये हमें वर्क डन देता है इन द साइकिल। और जब ये सिंपली तुम्हारा, और ऑफकोर्स इस केस में वर्क और हीट बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि हीट और वर्क कैसे रिलेटेड है, DQ इक्वल टू, यानी कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। बट एक साइक्लिक प्रोसेस में ये तो जीरो हो जाता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
बट इन जनरल जो टी डी एस का जो फॉर्मूला है वो तो ये है ना, डी क्यू के बराबर होता है ना। तो एक स्पेशल केस में जब साइक्लिक प्रोसेस होती है तब ये वर्क डन देता है, अदरवाइज वर्क डन नहीं देता, अदरवाइज हीट ही देती है। तो ध्यान रखना। जो मैंने पहले बता रखा था कि टी डी एस का जो एरिया है वो वर्क देता है, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि ये साइक्लिक प्रोसेस में वर्क होगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है अगर, तो वहाँ पर ये हीट देगा। एब्जॉर्ब या रिलीज वो कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपका एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो ए से लेके सी तक ये हीट एब्जॉर्ब बता रहा है, तो ये जो एरिया होगा वो हमें निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालना है हम देखो, ये जो ऐसा एक अजीब सा स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे इतना, फिर उसके बाद ये एरिया अंडर द कर्व 11th क्लास पढ़ा होगा ना, ये तो आएगा 12th क्लास सॉरी। तो ये किसका एरिया है, ये है सेमी सर्कल का एरिया प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया। ओके, सो द हीट एब्जॉर्ब इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अगर तुम इन एरिया को निकालो तो पाई आर स्क्वायर, आर तुम्हारा क्या है AC/2 है ना, मतलब AC तो तुम्हारा डायमीटर है, बट या फिर BD/2 भी बोल सकते हो, जो हमने पहले किया था उसी को लिख देते हैं। चलो BD/2 ये लिखा था ना हमने, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा T1 - T2 होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा ये रेक्टेंगल है